Hello friends, today I shall discuss about the method of joint in truss. I will discuss the very fundamental numericals. Only 3 members and one. Friends, I am Hari, civil structure engineers. So please watch the useful video. Step by step, some difficult numericals which are asked in university examinations or in competition examinations. So please, you are requested to please subscribe my YouTube channel Civil Structure eGuru and go to the description box. Already 5 videos have been posted on the concept of truss analysis and stability of joint. That videos are very interesting, and to clear your concept you must know some basic concepts like determinacy, indeterminacy, stability, how the stability of the truss is calculated. So I request you please go through that. I will give link in the description box. So please let us see. दोस्तों मैं कुछ मेथड्स बता रहा हूं जिसमें आपका स्टेप्स बता रहा हूं. Steps. Number 1, each joint shall be treated as equilibrium. Number 2, free body diagram it is also called free body diagram shall be made with angles etc. Number 3, proceed with the joint having one known and 2 unknown forces. Number 4, then resolve at that joint summation of all the vertical forces is equal to 0 and summation of all the horizontal force equal to 0. This should be assumed. Since moment is always 0, moment is 0, so only this and this. These two shall be taken. Summation of horizontal forces 0 and summation of vertical force 0 shall be taken as equilibrium to each joint to know the unknown reactions, unknown forces at that particular joint. If you just find the unknown reactions, unknown forces at that joint, then with the help of that known members magnitude, you have to go to the other joint and again
proceed the same procedure. Please remember that there should be two unknown forces should be there and one known. Then it is sufficient for calculating the other forces. तो आप दो बहुत जरूरी होती है हमारे, अननोन होनी चाहिए, एक नोन फोर्स होनी चाहिए, नोन लोड होनी चाहिए. अगर इसके आधार पर हम अगला ज्वाइंट पे प्रोसीड कर जाएंगे और वहां भी हम इक्वेशन के मदद से समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 निकाल लेंगे. इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि सपोज यदि ज्वाइंट पे हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं. सपोज अगर आप ये सपोज ये पॉइंट है और दिस इज द मेंबर बी है, तो अगर हम ये मेंबर में इस तरह से अगर हम करते हैं, इस तरह से अगर करते हैं, देन दिस इज कंप्रेशन. और इफ सेम मेंबर, सपोज दिस इज ए मेंबर एंड दिस इज बी मेंबर, और इसमें अगर नोट्स इस तरह से देते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट ये टेंशन, इस तरह से टेंशन डिनोट करते हैं. तो ये कुछ भी हम इसमें डिनोट कर लेंगे, कंप्रेशन या टेंशन, कुछ भी जो आपको पसंद आए वो हम कर लेंगे. और इक्वेशन सोल्व करते समय ये हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे. मैंने एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये पे मैं इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे निकालते हैं. तो भाई इसको मैं डिस्कस थोड़ा सा मैं इसमें करूंगा, और आप भी कोई अच्छे किताब लेकर के आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि इसमें आसानी से आप ज्वाइंट में वो रिजोल्व कर सके सभी. तो क्या होगा, रिजोल्यूशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रिजोल्यूशन सही है आपकी, तो आपके आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे. और आंसर यदि प्लस में आता है देन इट इज ओके. यदि आंसर जो है अगर माइनस में आता है, इसका यह अर्थ हुआ कि आवर एजम्पशन वाज रोंग, आवर एजम्पशन वाज रोंग. और उसमें क्या होगा, अगर उसमें क्या होगा, इफ ओरिजिनली assumed member as C, then if negative answer come, then actually member will be आपने यदि ओरिजिनली कंप्रेशन लिया हुआ है, यदि नेगेटिव आ रहा है आंसर में, तो क्या होगा, ये टेंशन में हो जाएगी. एक्चुअल में क्या होगी, मेंबर टेंशन में होगी. ये तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. इफ योर आंसर इज पॉजिटिव देन ओके, आपने जो टेंशन लिया है और कंप्रेशन लिया है दैट वाज ओके. यदि आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग. उस केस में क्या होगा, कंप्रेशन बदल जाएगा टेंशन में, एक्चुअल में. तो इन चीजों का ध्यान देना है. दिस इज द न्यूमेरिकल. वन किलो न्यूटन and this is hinge support and this is on the roller. This is 60 degree, this is 30, and
let us, this is 4 meter and this is 6 meter. Total distance is 10 meter. Okay. Now this is the this numerical. You have to first draw the free body diagram. Free body diagram is must. This is a very simple numericals in truss analysis, and if you able to understand this very fundamental numerical, then I hope then you will able to success in other numerical also. So let's see. Now one free body diagram. This is (30°). This is 60°. 1 kilonewton, and this is 4 meter. This is 6 meter. Total distance is 10 meter. This is roller support. This is roller support. So this for roller support, there is only one. This is A, this is B, and this is C. Okay. There's now let's come. Let's mark here. Let's start from here. A, this is B, and this is C. A, B, and C. Okay. Now, since this is a roller support, free body diagram, you have RC, only one vertical reactions, and this is hinge support. There shall be one horizontal reactions, but please ignore it. Since there is no horizontal reaction, is 0. So just mark only one RA for this support. And here this is 0. So please don't confuse it. Presentation, so I am not taking this. There shall be 2 reactions, but this just cancel this one. Analysis only RA and RC. This is the free body diagram. And number 2, assume direction of forces T or C. I will suggest you friends that whenever load is given at the node, then this is tie member and this is compression member. But like note that you may assume anything, any members. Let I assuming this tension and this is compression member. एक ही मेंबर में कभी भी आप जैसे ऐसे दे दिया फिर ऐसे दे दिया, गलत हो जाएगी। एक मेंबर में कभी भी कंप्रेशन और टेंशन नहीं डालिए। जब होगी या तो कंप्रेशन होगी या तो टेंशन होगी। जो डायरेक्शन जो ज्वाइंट पे हम लोग देते हैं, ये जो कंप्रेस कर रही है तो ये कंप्रेस हो गई थी, इस पे ही यहां भी कंप्रेस करेगी ये। अगर यहां टेंशन हो गई जो बाहर की ओर जा रही है, ये हमेशा ये अगर ज्वाइंट है तो ये टेंशन का सिंबल है, अगर ये ज्वाइंट है तो ये कंप्रेशन का सिंबल है, हमेशा याद रखना है। तो ये टेंशन इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सभी जो भी स्कॉलर्स है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, जो भी लर्नर्स है, ये इनको सभी को स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेप में गलतियां भी हो जाती है
तो नंबर कटते नहीं है, नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। तो ऐसे में हम स्टेप बाय स्टेप पे भी नंबर होते हैं। तो अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट में क्या है, रिजोल्यूशन करना है फोर्स को। अगला देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग। अब सभी को देख लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई यहां से भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे यहां पर क्या है, 1 टन लोड है और 2 अननोन फोर्सेस है, तो ज्वाइंट बी से भी स्टार्ट किया जा सकता है, कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, तो अगर हम यहां से, अगर यहां भी देख लीजिए 2 अननोन है और आरए हम आसानी से निकाल सकते हैं, रिएक्शन रेट सपोर्ट आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेट्स टैक पहले हम ये निकाल लेंगे, आर आर से निकाल लेंगे, तो और आसान हो जाती है हमारे लिए। तो हम बी नहीं लेकर के ए को लेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये हम आर अगर मालूम हो जाता है तो 2 हमारे लिए ये अननोन हो जाएंगे, और यहां ये इसके सहारे हम अगला भी बढ़ सकते हैं। ये आर आसानी से निकलेगी, सो हम ये लेके चलते हैं। और क्रॉस चेक के लिए हम यहां भी चेक करेंगे। तो लेट अस टेक बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ बेंडिंग बी एम एट ए इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, यहां देखिए एक आरसी है, तो आरसी जा रही है ऐसे, ये बनाएगी सेगिंग। तो क्या करेंगे, आरसी जब सेगिंग बना रही है तो प्लस कर देंगे, आरसी इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 10 मीटर, 10 लिख लेंगे। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट शेयर फोर्स के बारे में कम से कम 5-7 वीडियो में डाला हूं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये सब चीजें सोल्व करने के लिए। तो कृपया आप मेरे चैनल पे जाए, और कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट का मैं एक प्ले लिस्ट इसमें भी दे दूंगा आपको लिंक में, वो भी आप अच्छे से देख ले प्लीज। तो नेक्स्ट आरसी इंटू 10 हो गई। अच्छा, अगला ये एक ए फोर्स हो गई, तो ये क्या करेंगे, होगिंग करेंगे, ये इस तरह से जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जैसे माइनस देंगे, क्योंकि ये ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ये होगिंग बनाएंगे ये, तो माइनस ये फोर्स हो गई, और डिस्टेंस क्या हो गई इसकी 4 मीटर, तो ये लिख लेंगे 4 मीटर। ओके, माइनस क्या हुआ, प्लस क्या हुआ, प्लस चूंकि इस तरह से जाके ये प्लस इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से बनाएगी सेगिंग, और ये जो है आपकी ये 1 ये बनाएंगे इस तरह की होगी, तो ये माइनस में हो गया। ये क्या करेंगे हम लोग, 0। 2 ही फोर्स है, एक ये है एक ये है, एक वर्टिकल एक डाउनवर्ड, और कोई भी 2 ही लेके चलेंगे हम लोग इसमें। अब क्या हुआ, क्या आप देख लीजिए क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ, आर सी इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाई 10, देन अब क्या हो गई, आरसी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 0.4 किलो न्यूटन। तो ये आरसी के वैल्यू आपकी मिल गई, आरसी के वैल्यू मिल गई आपको 0.4 ही लिखेंगे अब किलो न्यूटन। तो ये यहां क्या है, अगेन आइए, अब क्या है, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू दोनों मिला के ये लोड आ रही है 1 किलो न्यूटन लोड आ रही है। तो अगर आपका आरसी का वैल्यू जान रहे हैं तो ये क्या होगा, आर ए इक्वल टू 1 माइनस आर सी, दैट मीन्स 1 माइनस 0.4, ये जो वैल्यू लिए है इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपके आ गए 0.6 किलो न्यूटन। ये भी ऊपर की हो गई, और इसका डायरेक्शन भी ऊपर की ओर हो गई। तो हमने इसको यहां लिख दिया, इसकी वैल्यू कितने हो गए, 0.6, ये लिख दिया हमने। अब आपका देखिए यहां पे वैल्यू आ गई, एक वैल्यू है आर इक्वल टू क्या है 0.6, तो ये वैल्यू इसको हम F1 कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं, और इसको F3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। दिस इज F3।
F1 एंड F2। ओके, F1, F2, F3 तीन हमारे फोर्स हो गए, दो डायरेक्शन नॉन हो गए। अब आगे देखिए हम कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। अब क्या है, ये वाला लेंगे हम लोग, ज्वाइंट ए लेके चलते हैं। ज्वाइंट ए लेके चलने में क्या होगा अपना, पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब लेंगे तो रिजॉल्व करेंगे तो दो ही आएगी फोर्स हमारे, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये और ये मिल जाए। ज्वाइंट ए देख लीजिए, ये F1 हो गई और ये एज्यूम डायरेक्शन है, ये 60 डिग्री और ये हमने बना दिया जैसा वैसे। अब जो है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ये दो फोर्स लेंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल लेके नहीं चलेंगे। रिजॉल्विंग फोर्स वर्टिकली, इसमें क्या होगा, वर्टिकल में ये आ गई F1 और दिस डायरेक्शन इज F1 साइन 60 डिग्री। ओके, तो वर्टिकल फोर्स में ऊपर में अगर आ रहे हैं हम तो इसको लिखेंगे, ऊपर आ रही है जा रही है तो ये लिखेंगे 0.6, और ये चूंकि डायरेक्ट नीचे की तरफ होगी डाउन, तो इसको लेंगे माइनस F1 साइन 60 डिग्री, तो ये होगी 0। इससे हम आपका F1 का वैल्यू निकाल लेंगे 0.6 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, ये अपना आ जाएगा 0.69 किलो न्यूटन। और ये चूंकि एज्यूम डायरेक्शन प्लस में है, इसलिए एज्यूम डायरेक्शन कॉम्प्रेशन वाज ओके, तो यहां हम लिख देंगे 0.69। ओके, नाउ अब हमें निकालना है दिस वैल्यू F3, दिस इज F3 निकालना है, तो इसको हॉरिजॉन्टली हम इसको डिसॉल्व करेंगे। अगेन ज्वाइंट ए पे हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या है, हमारी दो फोर्सेस है, तो ये क्या होगी, एक तो F1 हो गई, F1, और जो रिजॉल्व करेंगे हम तो ये वाला क्या होगी, F1 कोस 60 डिग्री होगी, और डायरेक्शन चूंकि इस साइड इधर से होगी, तो इसके लिए हम नेगेटिव डाल देंगे, और F1 कोस 60 डिग्री ये हो गई, और ये फोर्स चूंकि इधर जा रही है तो ये प्लस लेंगे और इसको F3 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम इंटरपोलेट करेंगे, करने के बाद में क्या होगा, F3 का वैल्यू क्या होगा, F1 हमें पता है 0.69, तो हम लिख देंगे F3 का वैल्यू, ये 0.69, F3 का वैल्यू 0.69 इंटू कोस 60 डिग्री, 69 इंटू कोस 60 डिग्री, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी पॉइंट, एड करके देखिए कैलकुलेटर से, हमें आ जाएगी 0.35 किलो न्यूटन। तो ये हमें यहां लिख देंगे 0.35 किलो न्यूटन, और अपना डायरेक्शन जो कि प्लस में आया है, तो ये हमारी जो एज्यूम डायरेक्शन है टेंशन, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही था। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे ज्वाइंट सी पे आ जाएंगे, चूंकि हमें 0.35 नोन है। ओके, नाउ लेट अस सी ज्वाइंट सी। ज्वाइंट सी रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो क्या होगी, हमें आरसी का वैल्यू पता है, तो यहां लिख देंगे, ऊपर की ओर जा रही है तो लिख देंगे 0.4 किलो न्यूटन निकाल रखा है हम लोगों ने, और ये चूंकि ये सी लिख देंगे ऐसे, ये सी है अपना, ये 30 डिग्री है और इधर से आ रही है, और ये बाहर की ओर जा रही है, और ये 0.4 है अपना।
और दिस इज F2, दिस इज F3। इसकी वैल्यू पता है हमें 0.35, तो 0.4, और इसको जब रिजोल्व करेंगे हम लोग F2 को वर्टिकली, तो ये जो हमें मिलेगा अपना F2 साइन 30 डिग्री आएगा ये, और इसकी डायरेक्शन चूंकि नीचे की ओर आएगी इसीलिए माइनस। तो यहां लिखिए हम लोग 0.4 ऊपर की ओर, ये इधर जा रही है तो माइनस ये लिखाएगा आपका F2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, F2 का वैल्यू क्या होगी, 0.4 डिवाइडेड बाई F2 का वैल्यू होगी, ये उधर चला गया, और F2 का वैल्यू साइन 30 डिग्री लेंगे, तो हमें F2 का वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से देख ले हम लोग, तो ये 0.4 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, तो ये आपकी आ गई 0.8। तो ये 0.8 किलो न्यूटन। आंसर चूंकि प्लस में है तो अपना F2 का वैल्यू ये जो डायरेक्शन इज ओके, ये आपकी कंप्रेशन में होगी। अब चूंकि ये अपना निकल गया, सभी चीज का भी निकल गया, ये F1 का भी निकल गया, F2 का भी निकल गया, F3 का भी निकल गया, और RC का पहले से नॉन था। अब हम देखते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, कोई ज्वाइंट पर डाल के सारे आंसर को देख लीजिए। अगर ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में है, मींस समेशन ऑल द वर्टिकल फॉर 0 या समेशन ऑल द हॉरिजॉन्टल फॉर 0, देन वी से दैट आवर आंसर इज ओके। तो बी पर हम देखते हैं दोस्तों, ज्वाइंट बी देखते हैं, इसको वर्टिकली रिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये आपका ये चूंकि नीचे की तरफ है -1 होगा प्लस, और क्या होगा, ये जो आप देखते हैं ये 4 जो है 69 वर्टिकली रिजोल्व कर रहे हैं, तो इसको क्या होगा, ये जो है 0.69 और दिस विल बी साइन 60 डिग्री, और जब इसको रिजोल्व करेंगे वर्टिकली तो ये हो गई F2 साइन 30 डिग्री, दिस वन। तो आंसर मिला हुआ है, साइन 30 डिग्री रख लेंगे, और सब अगर चेक करके देखेंगे वैल्यू पुटअप करके इंटू मल्टीप्लाई करके, इस मल्टीप्लाई करके, तो सब में हमें 0 आएगा। तो इसका अर्थ है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इट बी 0, सभी आंसर को रख करके, तो मेरा ये आंसर सही हुआ, यानी कि जो फोर्स हमने निकाला है, बिल्कुल डायरेक्शन निकाला है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ध्यान से आप बनाए तो सफलता जरूर मिल जाएगी, और धीरे धीरे आपको सबूत आने लगेंगे। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो हम पुटअप करते रहे। सभी नए वीडियो से आग्रह है, लाइक्स कमेंट देना ना भूले, और नीडी पर्सन को जरूर शेयर कर दे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगला वीडियो में स्ट्रक्चर एनालिसिस पे लाऊंगा, ट्रस एनालिसिस पर, मेथड ऑफ ज्वाइंट पर। ओके, जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।